بچے پر زندگی گزارتے ہیں. میں فیس دیتا ہوں تو ان کی پڑھائی ہوتی ہے. میں گاڑی دیتا ہوں تو وہ گاڑی پر گھومتے ہیں. میں کپڑے بناتا ہوں تو وہ کپڑے پہنتے ہیں. میں جوتے کے پیسے دیتا ہوں تو وہ جوتا پہنتے ہیں. وہ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں میرے بلبوتے پر کر رہے ہیں اور میں ان کی دیکھ بھال نگرانی کرتا ہوں. ہم سب کے بچوں کا یہ نظام ہے. اب ظاہر ہے کہ ماں بھی باپ بھی اتنی محبت سے اپنی اولاد کو پالتے ہیں. یقین جاننا میں اپنے دل کی بات کر رہا ہوں. آپ کے دل میں بھی انشاءاللہ یہی جذبات ہوں گے کہ ماں باپ اپنی اولادوں کو اتنی محبت سے پالتے ہیں. اگر پڑوسی نے ذرا سا ٹچ کر دیا نا کسی آپ کے بچے کو تو آپ پڑوسی کا سر پھوڑ دیں گے, ٹانگ توڑ دیں گے. میرے بچے کو کیسے کچھ کہہ دیا, کیسے مار دیا آپ نے میرے بچے کو. اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے بچے سے. ہر ماں باپ چاہے وہ انپڑھ ہو, جاہل ہو, سلیقہ تمیز نہ ہو, لیکن ہر ماں باپ یہ چاہتا ہے کاش میرے بچے ایسے کام کریں جس سے میرا نام اونچا ہو جائے. کاش میرے بچے اتنا کمائیں کہ میں نے جو زندگی پر محنت کی ہے بڑھاپے میں بیٹھ کر 2 روٹی آرام سے کھا لوں. کاش میرے بچوں کی جان اور مال کی حفاظت رہے کہ انہیں نقصان نہ پہنچائے. کاش میرے بچے ایماندار ہوں. کاش میرے بچے دیانتدار ہوں. کاش میرے بچے نماز پڑھنے والے ہوں. کاش میرے بچے اللہ سے ڈرنے والے ہوں. کاش میرے بچے حلال روزی کمانے والے ہوں. کاش میرے بچے اپنے رشتہ داروں سے رشتے جوڑنے والے ہوں, توڑنے والے نہ ہوں. کاش میرے بچے خوبصورت ہوں. کاش میرے بچوں کو سونے بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ پتہ ہو. کاش میرے بچوں کو موبائل چلانا آتا ہو, فلمیں دیکھنا آتا ہو. یہ ساری تمنائیں ادھر دل میں ماں باپ کے ہیں. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم. چاہتے سب ہیں کہ ہو اوجے سریا پہ مقیم. پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم. سب کے دل میں تمنا ہے, بڑی خواہش ہے میرے بچے ایسے ہوں, میرے بھائی ایسے ہوں, میری بہنیں ایسی ہوں, میرے گھر کے لوگ ایسے ہوں. یہ سب کی تمنا اور خواہش ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتے آپ کی تمنا صحیح, جو بھی آپ چاہیں سب تمنائیں صحیح, غلط یا جائز ناجائز سب صحیح, لیکن سسٹم آپ کا وہی ہے جو زمین کا سسٹم ہے. اللہ نے دنیا بھر کے خزانے زمین میں رکھے ہیں. سونا, چاندی, پیٹرول, پیتل, تانبا, گیس, جو چاہیے سب زمین میں. آپ کو یہاں سبزیاں, ترکاریاں, فروٹ چاہیے سب زمین میں رکھا ہے. لیکن آپ کو ان چیزوں کو حاصل کرنے کی نالج اور سسٹم آپ کے پاس ہونا چاہیے. یہ طریقہ یہی انسانوں کا. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی ایماندار ہو. میں چاہتا ہوں میری بیٹی پردے میں رہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کسی سے بات نہ کرے ناجائز. میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے. میں چاہتا ہوں کہ میری بہو میرا خیال رکھنے والی ہو. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی میری فرما بردار ہو. آپ چاہتے ہیں تو یہ تو ایسا ہی ہو گیا جیسے 100 بیگھے زمین کی آپ مالک ہیں اور چاہتے ہیں کہ گیہوں پیدا ہو جائے. ایسے تو پیدا نہیں ہوں گے. آپ کو بیج ڈالنا ہے, پانی دینا ہے, کھاد ڈالنا ہے, حفاظت کرنی ہے, انتظار کرنا ہے, اللہ سے دعا کرنی ہے, تو رزلٹ آئے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے ایسے 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 ہوں جن کا میں نے ذکر کیا, تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ سسٹم سیکھیں کہ یہ کھیتی کیسے اگائی جاتی ہے, اس کھیتی پر کیسے محنت کرنے کی ضرورت ہے. یہ سسٹم آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے بچوں کو کیسی تعلیم, کتنی تعلیم دلانی چاہیے, بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے, بچوں کو کیا سکھانا چاہیے, بچوں کو کیا نہیں سکھانا چاہیے. یہ سسٹم آپ کو آ گیا تو آپ کے بچے آپ کے پیر دھو کر پی لیں گے. آپ کے بچے آپ کو آہ نہیں کرنے دیں گے, آپ سے پہلے کھڑے ہو جائیں گے. آپ کے بچے آپ کا سر دبائیں گے, آپ کے پیر دبائیں گے, آپ کے جوتوں سے پٹیں گے, آواز نہیں نکالیں گے. آپ انہیں ماریں گے اور وہ کہیں گے بدن اور مار دیں گے. آپ کو اختیار ہے, آپ جو چاہیں گے. ہم آپ کی کھیتی, آپ نے ہمیں پالا پوسا, پڑھایا لکھایا, مکان, گاڑیاں, کاروبار آپ کے سب ہمارے حوالے کر دیا. بغیر محنت کی اتنی دولت آپ نے ہمیں دے دی, آپ جو چاہیں گے. بھائی دنیا کا ایک بندہ ہم پر احسان کر دے تو ساری زندگی شرم سے اس کے سامنے سر نہیں اٹھتا. بھائی سازی یہ آدمی ہمارا شادی کے وقت پر کام آیا تھا, اس نے ہمیں 50,000 روپے ادھار دیے تھے, تو ساری زندگی آپ اس کا لحاظ کرتے ہیں.
सारी जिंदगी। आपके कोई बंदा बीमार को उठाकर कब्रिस्तान, बीमार को उठाकर हॉस्पिटल ले जाए, जनाजा उठाकर आपका दफन करवा दे कब्रिस्तान में, जिंदगी भर आप उसका एहसान नहीं बोलते, यार ये मजबूरी में आज मेरे काम आया था। एक बार काम आया, जिंदगी भर आपको एहसान याद है। माँ बाप जो सारी जिंदगी उन पर लगा बैठे, दिन भी रात भी, जवानी भी बुढ़ापा भी, और सारी कमाई उन पर लगा दी, सारी खुशियां उन पर लगा दी, सारे जज्बात उन पर लगा दिए, और ये एक दिन को बाप को सलाम करने को तैयार नहीं, बाप के पास बैठने को तैयार नहीं, माँ की खिदमत करने को तैयार नहीं। गलती कहाँ हो रही है? आपकी बेटियां आपकी बात नहीं सुन रही हैं, आपके बेटे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, आपके भाई आपकी शक्ल नहीं देखना चाहते, आपके पड़ोसी आपसे मिलना नहीं चाहते। गलती कहाँ हो रही है? गलती कहाँ हो रही है? आप सोचिए, गलती कहाँ हो रही है? गलती तो हो रही है, गलती तो हो रही है। हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं, यकीन जानना माँ बाप बच्चों के पैदा होने के वक्त से धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा जमा करना शुरू करते हैं। बेटी पैदा हो गई तो माँ बाप को फिक्र हो जाता है, माँ बाप के और शौहर के पीछे लगी रहती है, जी बेटी है, ख्याल करो, कल जवान हो जाएगी। कहाँ से करोगे? थोड़ा थोड़ा सोना खरीदो, थोड़ी थोड़ी चांदी खरीदो, थोड़ा थोड़े से पैसे जमा करो। वो बेचारे धीरे धीरे खर्चे भी पूरे करेंगे, खुशियाँ भी पूरी करेंगे, और थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करेंगे। आखिर एक दिन बच्चे जवान हो जाएंगे, ऐलान हो जाएगा रिश्ता हो गया, तारीख आ गई कि बारात जानी है या बारात आनी है, रिश्तेदार जमा होने लगे, कपड़े बन रहे हैं, जूते खरीदे जा रहे हैं, जी सैलून वालों से कांटेक्ट किया जा रहा है, ब्यूटी पार्लर वालों से कांटेक्ट किया जा रहा है, तरह तरह के डिजाइन लिए जा रहे हैं, शादी हाल को बुक किया जा रहा है, बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, बड़ी तैयारियां हो रही। जिस दिन शादी होती है, शादी के दिन में माँ बाप को भूल कर भी, अचानक भी ये ख्याल नहीं आता कि इतनी प्रोग्राम बनाकर शादी कर रहे, तलाक भी हो सकती है, कल पंचायत भी हो सकती है, कल ये दाढ़ी भी पकड़ी जा सकती है, कल ये टोपी भी उछाली जा सकती है, कल मेरा गिरबान पकड़कर मुझे थाने में बिठाया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ख्याल नहीं आता। बाप भी खुश, ताया भी खुश, चचा भी खुश, मामू भी खुश, बहनें भी खुश, बहनों भी खुश, सब इतने खुश होते हैं, हजारों हजारों रुपया लगाकर उन्होंने कपड़े बनाए, जूते खरीदे, मेकअप कराए, तैयार होकर आए। किसी को जर्रा बराबर ख्याल नहीं, तलाक भी हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, सर भी फोड़े जा सकते हैं। इन माँ बाप को जिन्होंने लाखों रुपया मेहनत का लगा दिया है, धक्के मारकर कल बाहर भी निकाला जा सकता है। वो बहनें जिन्होंने भाई के लिए दुआएं की हैं, पैसा लगाया, शौहर से चोरी पैसा दिया है, उन बहनों को भी धक्के मारकर निकाला जा सकता है। ये ख्याल नहीं आता है और ये होता है। गलती कहाँ हो रही? गलती कहाँ हो रही? आप तो ये समझ रहे हैं कि साहब ये जो बहू आई है ये गलत है, ये गलत खानदान की बहू आ गई, ये लोग खराब लोग हैं, ये जलील लोग हैं, ये कमीने लोग हैं, इन्हें तमीज नहीं है, ये झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये अय्यार हैं। आपके दिमाग में तो ये बैठा है। लड़की वाले कह रहे हैं ये लड़का सही नहीं, ये बदतमीज है, ये आवारा है, ये शराबी है, ये रात और दिन घर से बाहर रहता है, ये तकब्बुर करता है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, कितने बड़े बाप की औलाद है। तो लड़की वाले लड़के वाले के खिलाफ, लड़के वाले लड़की वाले के खिलाफ, और पूरी जंग चल रही है। गलती कहाँ हो रही है? आपने इतनी मेहनत से बच्चों को पाला है, बहुत एक एक रुपया जमा करके शादियाँ की है, पढ़ाया है, कारोबार किया है, बड़ी मेहनत की है, बड़ी खुशियां मनाई हैं आपने। कभी ईद बकरीद में आपने उनके कपड़ों की नागा नहीं की, कभी आपने फिक्री कराने में नागा नहीं की, कभी उन्होंने आपसे किसी चीज़ की डिमांड की है और आपने उसे पूरा कर दिया, और फिर भी ये नतीजा आ रहा है कि सास ससुर बहू से कहते बेटे एक कप चाय पिला दो, बहू कहते तुम्हारे बाप की नौकर हूँ, तो गुलाम बनकर आई हूँ तुम्हारे घर में। दामाद को घर बुलाते हैं तो ऐसी गर्दन अकड़ी हुई है, उसे लगता है कि मैं तो बादशाह। ससुर के सामने झुकना पसंद नहीं करता, सास के सामने झुकना पसंद नहीं करता, अपने सालों से ढंग से बात नहीं करता, उसे लगता है कि मेरे से तो बड़ा आदमी नहीं है कोई। हालांकि उस खबीज के घर में चाहे ढंग पर रोटी भी ना मिलती है, उसके घर में चाहे ढंग से कपड़े धुलने वाला भी जो बंदा ना हो, लेकिन ससुराल में वो हीरो है, वो सुपर हीरो है।
गलती कहाँ हो रही है? इन बच्चों को समझ होनी चाहिए कि ये मेरी बीवी के माँ बाप ऐसे हैं जैसे मेरे माँ बाप। बहू को समझना चाहिए था ये मेरे शौहर के माँ बाप हैं, ये मेरे माँ बाप। बहू को समझना चाहिए था ये मेरे शौहर के भाई है, मेरे भाई, उनकी बहनें मेरी बहनें हैं। और दामाद को भी समझना चाहिए था कि मेरी सालियाँ मेरी बहनें, उनकी माँ मेरी माँ है, उनका बाप मेरा बाप है, उनके भाई मेरे भाई हैं। समझना चाहिए था। नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? गलती कहाँ हो रही है? गलती तो हो रही है। गलती ये है कि आपने जमीन के मालिक होने के बाद जमीन का बैनामा, दाखिल खारिज, कब्जा सब कर लेने के बाद खेती करना सीखा नहीं है। आपको जमीन से सोना चांदी निकालना आया नहीं, आपको गैस पेट्रोल पीतल तांबा निकालना आया नहीं है। ये आया नहीं, गलती आपकी है, किसी की कोई गलती नहीं है। आपको तमीज नहीं आई, आपको सलीका नहीं है, आपने किसी के पास जाकर पूछा ही नहीं कि कैसे काम होता है। काम करने का तरीका आता तो रिजल्ट ये नहीं आते जो आज आ रहे हैं। आपकी बेटियां भी भाग रही हैं, आपके बेटे भी भाग रहे हैं। कोई न बेटे कंट्रोल में है, न बेटियां कंट्रोल में, घरवाली भी कंट्रोल में नहीं, बेटों को तो छोड़, घरवाली कंट्रोल में नहीं। आपको काम करना आया नहीं, सलीका नहीं आया। जैसे मैंने मिसाल दी कि खेती करनी आएगी तो जमीन से सब्जी भी उगेगी, फ्रूट्स भी मिलेंगे आपको, गन्ने भी मिलेंगे आपको। आपको पेट्रोल तेल निकालना आएगा तो फिर आप इतना पेट्रोल निकालोगे सारी दुनिया की गाड़ियां चल पड़ेगी, सारे हवाई जहाज चलने पड़ेगा। आपको आना चाहिए, ये आपको आया नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की आयत में यही बात समझाई है, जमीन पर मेहनत करते हो तो जमीन लहलहा उठती है, जमीन पर मेहनत करना छोड़ देते हो तो फिर जमीन बंजर हो जाती है, जमीन में कीड़े कांटे पैदा हो जाते हैं और वो कांटे आपके भी कपड़े फाड़ देते हैं और वहां के कांटे आपको भी चुभ जाते हैं, वहां के सांप बिच्छू आपको भी खा लेते हैं। अब जब आपने औलादों पर मेहनत नहीं की तो ये औलादें तो आपको गालियां देंगी ही, क्योंकि आपने मेहनत नहीं की। ये औलादे आपको धक्के मारकर घर से निकालेगी क्योंकि आपने मेहनत नहीं की, जमीन बंजर हो गई। अब आपके समझाने से भी कुछ नहीं होगा, टाइम निकल गया। अब आप बोलते रहिए, बद्दुआएं देने के सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं। माँ बाप पल्ले पसार पसार कर बद्दुआ दे रहे हैं, ये बहू बेड़ा गर्क हो जाए, बेटे का बेड़ा गर्क हो जाए, किसी का बेड़ा गर्क आपके कहने से हो नहीं रहा है। बढ़िया रोटी खा रहे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। गलती आपकी है, उनकी नहीं है। गलती आपकी है कि आपको ने मेहनत नहीं की। मेहनत ना करने का नतीजा तो कीड़े काटे ही पैदा होना है ना, मेहनत ना करने का नतीजा तो जमीन का बंजर होना है ना, मेहनत ना करने का मतलब तो सांप बिच्छू पैदा होना। अब ये आपकी औलादे सांप बनी, आपको डसेंगी, ये आपको डसेगी। आप ही की औलादे आपके घर से माल चुरा रही, सोना चुराती, चांदी चुराती, पैसे चुराती, माँ बाप को गालियां देते, जमीन करते, माँ बाप को कहते क्या किया तुमने सारी जिंदगी। अरे माँ बाप के दिल से पूछ कर देखो कितनी मुसीबतों से तुम्हें जवान किया है, पूछ कर तो देखो। पता नहीं किस किस के ठोड़ियों में हाथ डाला है, किस किस के पैर पकड़े, कहाँ कहाँ से कर्जे मांग कर तुम्हें बनाया और संभाला है, और तुम आज कह रहे हो तुमने क्या किया। तुम कह रहे हो अब तुम करके दिखाना तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे किया, करके दिखाओगे तो पता चलेगा। ये औलादे आपके लिए दुनिया और आपके जीने को जहां